Hello students, so today's chapter is from class 7, chapter number 7. The name of the chapter is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Okay, so this chapter I took from class 7 of NCERT book. So what is weather? We talk about the weather in this chapter. In our everyday life we talk about today's weather. What is today's weather, right? So weather means जो day by day change होता है, okay? And जो weather होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके टेम्परेचर पे, आपका कैसा टेम्परेचर है, कैसे ह्यूमिडिटी है, बारिश है या नहीं है. So that is called weather. The particular definition of the weather is the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. Okay? Means जो weather होता है किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है अब हमारे एटमॉस्फेयर में? in the respect of temperature, humidity, rainfall, wind speed. wind की स्पीड क्या है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल है नहीं है. तो डे टू डे जो कंडीशंस होती है दैट इज कॉल्ड weather conditions. Okay, that is called weather. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. So the point we take here, temperature, humidity, rainfall, wind speed, that are called element of the weather. We decide the weather on the basis of these elements. Okay, so next point is climate. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. Climate of the place means आप कोई एक ऐसे places ले लो जहाँ पे आपका डे टू डे एक तो वेदर होता है, लेकिन अगर वो वेदर सेम चल रहा है आपका कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, ईयर्स like 25 years, 5 years, 3 years and many more, whatever you take, climate means the combined of the weather of the day to day. मीन्स जो क्लाइमेट होता है आपका एवरेज लिया जाता है. जैसे वेदर हम डे टू डे निकालते हैं, उस टोटल वेदर जो पूरे महीने भर रहा या पूरे साल भर रहा या पूरे सालों तक रहा, उसका जो एवरेज लिया जाता है उसको क्लाइमेट कहते हैं. कि हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है या इस जगह का क्लाइमेट हमेशा पॉल्यूटेड रहता है या इस जगह का क्लाइमेट हमेशा अच्छा रहता है. ओके, सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न. जो भी वेदर पैटर्न है, जो रोज का वेदर है हमारा जो देखते हैं, तो उसका जो ओवरऑल एवरेज लिया जाता है वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड these 2 points. Weather is decided day to day and climate is decided a long period pattern of weather. Okay, over a long time के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, then we decide the climate of that place. Okay, so next point is countries name that belong to polar region. polar region में कौन से कंट्री हैं जो belong करते हैं? These countries name given in NCERT book. So maybe they ask in your exam countries name that belong to polar region, give any name. So Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. They all comes under polar region. Okay, the next point is countries name where tropical rainforest found. Tropical rainforest कहाँ मिलते हैं? ओके, तो ऐसे कंट्री जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं लाइक इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर रीजन. व्हाट इज पोलर रीजन? पोलर रीजन में आपका कितना टेम्परेचर रहता है और किस टाइप के आपके वहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं. वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट इन दिस. पोलर रीजन्स में पोलर बियर, पेंगुइन, फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हील्स एंड बर्ड्स. दीज आर फाउंड इन पोलर रीजन एंड पोलर रीजन का टेम्परेचर होता है -37 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस चैप्टर इन एनसीईआरटी टॉक अबाउट भरतपुर. ओके, एक चिड़ियाघर है जहाँ पे ये चीजें मिलती हैं.
तो भरतपुर फाउंड इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. सो दे आस्क अबाउट वेयर द भरतपुर इज फाउंड. तो भरतपुर इज situated in Rajasthan and Sultanpur is situated in Haryana. Okay. The next point is the tropical rainforest. Generally hot climate cross 40 degree Celsius. Days duration होता है. Tropical rainforest में क्या होता है, जनरली जो क्लाइमेट होता है हॉट होता है, लाइक क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. एंड जो डेज ड्यूरेशन होता है इक्वल टू होता है नाइट ड्यूरेशन, यानी कि जो इनकी लेंथ होती है रात और दिन दोनों की लेंथ इक्वल होती है. And the tropical rainforest found in Western Ghats, Assam in India, Southeast Asia and Central America. Okay. The next point is animals in tropical rainforest. कौन से ऐसे animals हैं जो tropical rainforest में मिलते हैं, जिसका क्लाइमेट जनरली हॉट क्लाइमेट है एंड डेज और नाइट का ड्यूरेशन सेम है. सो एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, मंकीज, एपिस पूंछहीन वानर जिसकी पूंछ नहीं होती उसके एपिस, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट. red-eyed frog. In this chapter like a red-eyed frog के बारे में दिया गया है. So let's discuss this. Red-eyed frog क्या होता है? Red-eyed frog live in trees, have sticky pads on its feet to help in climb trees. जो red-eyed frog होते हैं वो थोड़े स्पेशल टाइप के हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं, ये रहते हैं ट्रीज में, और इनके जो पाँव होते हैं उनके नीचे जो पैड लगे होते हैं क्या होता है, स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज दे क्लाइंब ट्रीज. ओके. नेक्स्ट है monkeys. For live on trees, monkeys have long tails for grasping branches. आपने देखा होगा monkeys की बार long tail होती है. ओके. सो वो किसके यूज में आती हैं? For live on trees, monkeys have long tails for grasping branches. branches को पकड़ती भी है उससे, ओके, और उसमें ट्रीज में रहती भी है. नेक्स्ट है toucan. Okay, what is next point is toucan. It possesses a long, large beak. इसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, इसके पास जो toucan के पास होती है लॉन्ग होती है और लार्ज होती है. The tropical rainforest animals have camouflage by blending with the surroundings. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक स्पेशल थिंग्स होती है, क्या होता है, कैमोफ्लाज होता है. कैमोफ्लाज में जैसा उनका सराउंडिंग्स होता है उस तरह से अपना कलर चेंज कर लेते हैं और सराउंडिंग्स में घुल मिल जाते हैं. मतलब अगर हरी घास है तो अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं वो लोग, और ग्रीन में अपना ब्लेंड हो जाते हैं. ओके. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स हैव कैमोफ्लाज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स. लायन टेल्ड. ओके. जो लायन होता है टेल, बियर्ड ऐप इसका दूसरा नाम है, बियर्ड ऐप. जो लाइन टेल्ड है बियर्ड ऐप भी बोलते हैं इसको. लिव इन वेस्टर्न घाट्स. मे बी दे आस्क वेयर लाइन टेल्ड और बियर्ड ऐप, ओके, वेयर दे फाउंड इन, वेयर दे लिव इन. सो दे लिव इन वेस्टर्न घाट्स. दे हैव सिल्वर वाइट मेन, यानी घोड़े और शेर के लंबे बाल. कैसे होते हैं इनके? सिल्वर वाइट मेन. ओके. सो आई होप you understand this chapter very carefully, and we meet again in the next chapter. So bye.